Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Rigva from SSGM College. So first of all, I would welcome to all of you student in our online lecture of our subject Advanced Auditing. This is our fifth lecture of the chapter Audit Committee and Corporate Governance. In first lecture we have discussed introduction, meaning, definition and elements. In second lecture we have discussed about principles of corporate governance in detail. In third lecture, report on corporate governance we have discussed. In fourth lecture we have discussed the issues of corporate governance. In last fourth lecture we have taken on Google Meet, and now in fifth lecture of that chapter we will start now. So today we have discussed about the topic subtopic of the third chapter Audit Committee and Corporate Governance will be verification of compliances of corporate governance. First of all, to implement corporate governance, SEBI has directed stock exchange to insert a new clause in their listing agreement under which specified listed companies and those seeking companies listed companies will implement corporate governance. There are many companies who have registered under corporate governance system because they provide rules and regulation, obligatory resources for the company to maintain their position, to analyze whether they start up a business, particular business, and particularly the aiming the business is protecting corporate organization. So corporate governance is nothing but an system which provide and rules and regulation which have been regulated by the government, and the SEBI Stock Exchange Board of India has provided and directed the stock exchange to introduce new clauses. तो सेबी क्या प्रोवाइड करता है, वेरीफाई करता है all the kinds of resources which can be implemented, whether the resources or listing agreement company who have listed under the corporate governance, whether they follow the procedure, the section they have to maintaining the position of whether the startup of their companies. So the company auditor has to certify the compliances with the condition of corporate governance, applying the requirement of audit and assurance standard and code of conduct. So the company auditor has been the auditor of a company. जो भी कंपनी का ऑडिटर रहेगा तो उसको क्या वेरीफाई, जब वो कंप्लाइंस रिपोर्ट प्रिपेयर करता है तो उसको क्या है, पूरी उस रिपोर्ट को एक्चुअली में पूरा बनाने के बाद उसको सर्टिफाई करने के बाद सारे जो कंडीशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के अंतर्गत दी गई हैं, जितनी भी सारे कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको देखने के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑब्लिगेटरी यूजेस है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को फॉलोअप करने के बाद कंपनी ऑडिटर कंप्लाइंस रिपोर्ट मेंशन करेगा, एंड कंप्लाइंस रिपोर्ट को अप्लाई करके जो सारी की सारी ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट रहती हैं, अश्योरेंस स्टैंडर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट, सो ऑडिट कमिटी और ऑडिट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट और गवर्नेंस हैव अश्योर द रिक्वायरमेंट, जो यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या प्रोवाइड करता है, एक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड and the code of conduct, and the company auditor has to certify all the compliance report and mention as per the according to the rules and regulation which can be stated under the corporate governance system. And the corporate governance system is more flexible, whether we have stating anyone's company and maintaining the rules and regulation within the sources of communications. So these are the various sources which have been applicable, and verification whether the auditor have doing a compliance report, they have to verify all the details which they have mentioned. तो जैसे कि हमने रिपोर्ट ऑन कंप्लाइंस रिपोर्ट हमने देखी थी कि कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, ये सब डिटेल्स हम मेंशन करते हैं.
ओके तो कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत हम क्या सारे के सारे ये चीज़ें मेंशन क्लॉज कंटेंट मेंशन करते हैं। ओके तो कंटेंट्स के अंतर्गत अब क्या करना है, पहले उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, देन उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के बाद उस रिपोर्ट को वेरीफाई करना है कि हाँ कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट बनाई गई है कि नहीं है कंप्लाइंस रिपोर्ट। ओके सो ये सारे जो कंटेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रिपोर्ट के अंतर्गत थे, तो इन्हें क्या करेगा ऑडिटर हैव टू बी वेरीफाई ईच एंड एवरी आइटम and each and every content which we have auditor have been mentioned in a corporate compliance report of a company। तो जो compliance report of a company की है वो रिपोर्ट के अंतर्गत ऑडिटर सारे के सारे जो क्लॉज कंटेंट्स हैं जो कि यानी कि वो रिपोर्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट रहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल्स चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या थी डिटेल्स चाहिए। तो अभी रिपोर्ट में ऑडिटर को क्या वेरीफाई, जैसे हमने रिपोर्ट में देखा था कि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी माहिती लिखी रहती है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कितने एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से प्रकार के डायरेक्टर हैं, कैटेगरी के डायरेक्टर्स हैं, number of directors, their names, their designation, their job interest rate, their payments। तो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की तो उसके अकॉर्डिंगली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल्स मेंशन करेंगे। तो ओके जब ऑडिटर वेरीफाई करेगा वो कंप्लाइंस रिपोर्ट को तो ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो कंपनी के अंतर्गत उसमें से 50% द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव लिस्ट 50% ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देयर हैव बिन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के अंतर्गत एक प्रकार के डायरेक्टर रहते हैं, कंपनी के अंतर्गत विविध प्रकार के डायरेक्टर्स रहते हैं जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द चेयरमैन ऑल्सो, चेयरपर्सन वी हैव कॉलिंग चेयरपर्सन इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके तो ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होने चाहिए कंपनी के अंतर्गत 50%। Okay, 50% should have been the board of director will be non-executive in a particular company। So ये जो डिटेल्स हैं ये कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत मेंशन होनी चाहिए। तो ऑडिटर इन चीज़ों को वेरीफाई करेगा कि 50% रिमेनिंग जो डायरेक्टर हैं वो होने चाहिए बाकी के, और 50% होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ऑनियल रिपोर्ट में ये जो डिस्क्लोजर्स रहेंगे इनके कंटेंट्स रहेंगे ये सब ये डायरेक्टर की डिटेल्स के कितने नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है, इनडायरेक्ट का इंटरेस्ट रेट कितना है, तो कंप्लाइंस रिपोर्ट में ये सारी जो डिटेल्स हैं ये मेंशन आउट प्रॉपरली रहती हैं। ओके देन द सेकंड विल बी ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के में अंतर्गत उन्होंने मेंशन क्या करी थी कि उनके जब हम रिपोर्ट वेरीफाई करते हैं इन थर्ड लेक्चर वी डिस्कस कि ऑडिट कमेटी के यानी कि डिटेल जब हम वेरीफाई करते हैं कि ऑडिट कमेटी के अंतर्गत क्या क्या यानी कि टर्म्स हैं, उनकी ऑडिट कमेटी की पावर्स क्या है, ये हम वेरीफाई देख के ये सारी डिटेल मेंशन करते हैं। पर जब ऑडिटर वेरीफाई करता है तो ये क्या उसको देखना रहता है कि कमेटी के अंतर्गत जो ऑडिट कमेटी है उसके अंतर्गत 3 मेंबर रहने चाहिए। At least 3 members should be the member of audit committee, or it has been necessary for the listed company they have required whether they are appointing any audit committee, they have making any audit committee, so they have to require at least 3 members as an audit committee। सो उनको क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट कमेटी के अगर लिस्टेड कंपनी है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जब वो कोई ऑडिट कमेटी फॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट उसके ऑडिट कमेटी के अंतर्गत 3 मेंबर रहने चाहिए। ओके सो ये जो ऑडिटर को वेरीफाई करना रहता है कि ये 3 जो मेंबर्स हैं कंपनी के अंतर्गत तो ये कौन कौन से मेंबर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और मैच्योरिटी पर्सन है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर तो नहीं है। तो ये मेंबर क्या होने चाहिए, डायरेक्टर में से ही होने चाहिए। ऑडिट कमेटी के अंतर्गत कौन से मेंबर होने चाहिए, डायरेक्टर, जो कि कंपनी को ट्रू एंड फेयर व्यू अपना ओपिनियन दे सके, कोई भी सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी प्रॉपरली रिव्यू कर सके एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वॉच कर सके, सारे डिसिप्लिन कंट्रोल कर सके,
उन कमेटी को, और क्या कर वेरीफाई करे एरियर्स, फ्रॉड, और रिड्यूस करे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो फ्रॉड मेक कर रहे हैं जो स्टाफ मेंबर्स, तो ये कमेटी उन चीज़ों को वेरीफाई करे। तो इन कमेटी के अंतर्गत एटलीस्ट 3 मेंबर्स जो अपॉइंट कर रहे हैं वो डायरेक्टर में से ही होंगे। ओके, सो ये ऑडिटर को चीज़ें वेरीफाई करके उनकी डिटेल्स कंप्लाइंस रिपोर्ट में मेंशन करनी रहती है। तो ऑडिटर जब वेरीफाई करता है रिपोर्ट में, तो ये सारी डिटेल्स दे हैव टू चेक एज पर द सिचुएशंस। ओके, देन थर्ड विल बी रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर कि कितने परसेंटेज में जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो 50% जो कंपनी के जो यानी कि ये पोजीशन रहेंगी, डायरेक्टर रहेंगी, तो 50% डायरेक्टर कौन से रहते हैं, दे विल बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो उसमें से वी विल टेक, तो 50% जो रेम्यूनरेशन रहेगा कंपनी का, तो वो रेम्यूनरेशन किसको जाएगा, द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो ऑडिटर शुड व्यू एंड शुड चेक दैट द कंपनी हैज़ मेड द फॉलोइंग डिस्क्लोजर अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब वो ऑडिट रिपोर्ट मेक करेंगे, कंप्लायंस रिपोर्ट कंपनी की, तो ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो रेट ऑफ रेम्यूनरेशन रेट है उनका ऑडिटर को, जो यानी कि उन्होंने ठहरा है कि दे हैव डिस्ट्रीब्यूटिंग टू देयर ऑल द शेयर हो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो दैट रेट विल बी एग्जीक्यूटेड विथ इन द लॉस एंड रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो जो रेम्यूनरेशन पैकेज ऑफ ऑल डायरेक्टर को, जो उनकी बेनिफिट, सैलरी बेनिफिट, बोनस, स्टॉक ऑप्शन, पेंशंस, जो भी उनको यानी कि देने का चांसेस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ये ऑल एलिमेंट्स को फिक्स अमाउंट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो दे हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई ईच एंड एवरी सिचुएशन वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग ऑफ कंप्लायंसी रिपोर्ट। सो कंप्लायंसी रिपोर्ट में रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल्स, और रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को कितने पीरियड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर स्टॉक ऑप्शंस, pension schemes, so all the details of remuneration will be mentioned. So auditor have to verify all the details whether they have making an compliance audit report. Okay, move forward to next point. The next point will be verification of compliance of report will be board procedure. Board procedure. So board procedure is what, whether an auditor have verified the board meeting कि how many meetings have been stated in a year. तो ऑडिटर को क्या, जब कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट वेरीफाई करेगा तो ऑडिटर को क्या रिव्यू करना पड़ेगा कि इस के ईयर में, इस फाइनेंशियल के असेसमेंट ईयर में कंपनी के अंतर्गत कितनी बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में कितने नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट थे। और ऑडिटर की ये बहुत में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द बोर्ड मीटिंग शुड टेक एटलीस्ट 4 times in a year, मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन एनी 2 or 3 more 4 months। ओके, सो ये जो मीटिंग्स है, वो मीटिंग का प्रोसीजर किस तरीके से था, मीटिंग के टाइमिंग क्या थे, डिटेल्स क्या थे, तो मीटिंग का प्रोसीजर कैसा है, तो ये सारी जो बोर्ड मीटिंग के प्रोसीजर्स है, तो ऑडिटर को ये सारी डिटेल्स और उनकी मीटिंग कौन से दिन पे, कौन से टाइमिंग पे और कितने मंथ में, तो ये जो इनका ड्यूरेशन है, ये इनके प्रोविजंस क्या है अभी, तो और मैक्सिमम अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ बोर्ड एट ईच मीटिंग, जो भी बोर्ड मीटिंग होती है एट एनी टाइम। सो द बोर्ड मीटिंग हैव स्टेटेड ऑन विच डे, विच टाइमिंग, एंड इन हाउ इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स विल टेकन अ मीटिंग। एटलीस्ट 4 month का गैप होना चाहिए, पर्टिकुलरली 1 मीटिंग के अंतर्गत 4 month का गैप होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग हर 4 महीने के बाद इन ईयर में कैलकुलेट करनी चाहिए, एंड देन बोर्ड मीटिंग विल बी डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ a company, because in board meeting they have passed a special resolution whether to set up a company, and then they have to analyze the position of a company, that what is the current situation of a company. So auditor have to maintain that kind of provisions and available information of all the meetings, board meetings, जो भी उनकी बोर्ड मीटिंग्स के डिस्कशंस विद प्रोविजंस और मैक्सिमम जितनी भी इंफॉर्मेशन बोर्ड मीटिंग में की जाएगी, एट ईच मीटिंग इंफॉर्मेशन दे हैव टू मेंशन इन अ कंप्लायंस रिपोर्ट। सो ऑडिटर इस चीज़ को वेरीफाई करेगा वेदर दे वेरीफाइंग द कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट पॉइंट द
Auditor will verify the company speed of management working, management decision and analyzing. Okay, the company have to see and review the management provisibility of how the management have discussed and analyzed their रिपोर्टिंग. ओके, सो मैनेजमेंट क्या देखती है, मैनेजमेंट से हम कंपनी की क्या एनालाइज करते हैं कि हाँ मैनेजमेंट क्या एनालाइज करती है कंपनी, दैट दे शुड हैव अ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज रिपोर्ट फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर वेदर ऑफ द डायरेक्टर डिसीजन. सो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज रिपोर्ट के अंतर्गत क्या मेंशन रहता है, इंडस्ट्री की जो भी कंपनी है उसकी स्ट्रक्चर पूरा उसका डेवलपमेंट किस करेगा, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ क्या डिसाइड करती है कि जो ये कंपनी है इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहेगा, इसकी स्पीड किस फॉर्म की रहेगी, कंपनी कैसे वर्क करेगी, आउटलेट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हमें स्टाफ में देनी है, और अगर स्टाफिंग में कोई थ्रेट्स करता है, फ्रॉड मेकिंग करता है, तो ये मैनेजमेंट अथॉरिटी इन सब चीज़ों को डिस्कस करती है और इन सब चीज़ों को एनालाइज करके रिपोर्ट मेक करती है. और फिर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ क्या देखती है, मैनेजमेंट इज़ द टॉप of the company because they have to manage all kinds of work, they have to allocate the work between the staff, they have to distribute the different work to the different department, internal control system, risk concern, ये सब मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के डिस्कशंस के अंतर्गत आते हैं. इन सारी चीज़ों पे मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्कस करके अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करके दैट विच स्टाफ हैव मेकिंग a nice work as per the situation and how many times they have to be maintaining proper way. तो ये सारी रिपोर्ट्स को एनालाइज करके डिस्कस करके इसकी प्रॉपर एक एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटी की एनुअल रिपोर्ट. तो इसकी सारी की सारी वो डिटेल जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की ये सारी डिटेल्स कमर्शियल पेपर्स पे लिखी रहती हैं एंड दैन कमर्शियल पेपर दे हैव टू पब्लिश टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और वो जो कंपनी की पोजीशन रहती है जब बोर्ड मीटिंग होती है तो इसमें ये सब पोजीशन दे हैव टू डिस्कस एज पर द टाइम टू टाइम. ओके, सो दैट सिचुएशन वी हैव वेदर वी मैनेजमेंट का अगर हम एनालाइज करते हैं तो मैनेजमेंट इन सारी सिचुएशन पे काम करके उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपना डिस्कस करने के बाद इन सारे स्टाफ के वर्किंग को, थ्रेट्स को, डिस्कशन को, रिस्क कंसर्न, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं. तो ये सारी चीज़ों को मैनेजमेंट डिस्कस करने के बाद एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट फॉर्म करेगी और उस रिपोर्ट को एनुअल रिपोर्ट कहते हैं. और वो रिपोर्ट डायरेक्टली दे हैव टू सबमिट द डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स इसके अंतर्गत वो रिव्यू करता है. तो ऑडिटर को जब ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग करता है तो ये ऑडिटर को ये कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी डिटेल मेंशन रहती हैं. तो ऑडिटर को ये चीज़ें वेरीफाई करनी रहती हैं कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से मेंशन है क्या नहीं है. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट विल बी द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स की क्या है, शेयर होल्डर हैव टू वर्क अ ब्रीफ as an director. Shareholder will be the owner of that company. What we call shareholder will be the owner of that company. If there is an appointment of a new director or reappointment of an existing director of the company, should disclose to the shareholder information. So अगर कि यानी कि हम कोई भी मेंबर डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं या किसी को जो न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं या रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग, उसकी दोबारा जो हमारे डायरेक्टर एग्जिस्ट है कंपनी के अंतर्गत उसकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो ये जो कंपनी के क्लॉज के अंतर्गत ऑडिटर को ये सारी इंफॉर्मेशन दे हैव मेंशन. और ऑडिटर दे हैव टू कलेक्ट द ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि ब्रीफ रिज्यूम ऑफ. तो ऑडिटर शुड कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द director and he have the responsibility to appoint each and every director. So they have to capable because they have to allocate the board meeting and the any kind of board meeting on board committee or board of directors information and the dividend, transferable rate, transfer agent rate, committee. So all the work in a company or the board of directors member, dividend balance, declare dividend, transfer of payment officer. So all the work of that communicate will be the responsibility of
shareholder, or shareholder will be decide, or shareholder will be know their responsibility duties, how they have should be the work as per the company's laws. ओके, सो ऑडिटर के अंतर्गत सारी चीज़ों को ऑडिटर को वेरीफाई करना रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ रिज्यूम ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का ब्रीफ रिज्यूम कलेक्ट करेगा. सेकेंडली दे हैव टू मेंशन नेचर ऑफ हिज एक्सपर्टाइज करेगा कि हाँ कौन से फंक्शनल एरियाज है डायरेक्टर्स के, और कौन कौन सी की नेम ऑफ कंपनी कौन सी थी प्रीवियस कंपनी इन विच दे हैव अपॉइंटेड, रीअपॉइंटमेंट होल्ड करनी है तो मेंबर्स के बोर्ड ऑफ कमिटी की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी. तो जो वेबसाइट, बिकॉज ये वेबसाइट पे उनकी डिटेल्स, कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर इनकी डिटेल्स मेंशन करनी रहती है, प्रेजेंट करनी रहती है. तो इसके लिए ऑडिटर को ये शेयर होल्डर को ये सारी चीज़ें डायरेक्टर्स की वेरीफाई करनी रहती हैं. अल्टरनेटली ये सच इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाती हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अंतर्गत अगर किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करी गई है तो ये डिटेल भी स्टॉक एक्सचेंज के पास कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत जानी चाहिए कंपनी की. ओके, कि बोर्ड कमेटी कौन सी है, चेयरपर्सन कौन कौन है कंपनी के अंदर, कंप्लेंट्स ऑफ शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, किसी के भी अगेंस्ट हो, अगर शेयर होल्डर ने रिजॉल्व करी हो सारी प्रॉब्लम्स को, तो और इन्वेस्टर्स की, तो ये बोर्ड कमेटी ने रिजॉल्व करी हो, तो ये सारी जो भी डिटेल्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंप्लाइंस रिपोर्ट. In a form of compliance report. So the shareholder must know all the details of all the information regarding the aspect of appointment and reappointment, and the more information, spending shares, dividend, and they have share transfer committee, so the registered of transfer agent, share transfer agent, so they know all the details regarding the aspect of the company and which information is suitable for the company and position relatively. So they have to analyze in a certain situations. So the auditor have know all the details, so the shareholder will inform that information to the auditor. Whether auditor verify and compliance report, so shareholder should tell each and every information regarding whether they maintaining a compliance audit report. Okay, so this is the 6th point of verification of compliance audit report और compliance report of a corporate governance. और वो corporate governance के अंतर्गत ही रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही मेंशन होनी चाहिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेंशन है. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट विल बी द 7th पॉइंट, विल रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ओके, जब वो रिपोर्ट है ना फाइनली सबमिट होती है, द कंपनी हैज़ टू इंश्योर दैट इट annual report there is a separate section on corporate governance with a detailed compliance or action taken report. ओके, दो जो कंपनी यानी कि जब कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करती है तो वो जो यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है, एक सेपरेट सेक्शन प्रोवाइड करता है. एक कंप्लाइंस जो ऑडिट रिपोर्ट रहती है, कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत किसके रहती है, कंप्लाइंस रिपोर्ट अंतर्गत ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसी के एक्शन थ्रू दे हैव टू प्रिपेयर अ कंप्लाइंस ऑडिट रिपोर्ट. सो द नॉन कंप्लाइंसिंग जो यानी कि रिक्वायरमेंट है कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, जो एक्शन लिए जाते हैं रिपोर्ट उसके टूवर्ड्स हम लोग ये, और डिटेल्स सब यानी कि मेंबर्स, डिटेल्स ऑफ मेंबर, डिटेल्स ऑफ कंपनी, बोर्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी, शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन, सर्टिफाइड डायरेक्टर्स. सो द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और नॉन compliance information we have to mention as per the listing agreement. As per the non compliances report will be form a special reference. तो जो non compliances information रहेगी तो वो एक special reference के थ्रू पास होगी जो mandatory requirement है कंपनी की उसके towards. So in the same way they specify a non mandatory requirement कौन कौन से हैं, they have to verify all the details of that also. Okay, so the last point will be certificate by auditor.
certificate by auditor. After verifying the compliance of all the above mentioned provision of corporate governance, the auditor has to ensure that they have to mention whether they issue a certificate. So they have to verify all the details, all the contents which have been mentioned and signed by the board of directors. So after verifying the compliance, जब सारे ये कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारे कंटेंट वेरीफाई करने के बाद, जस्ट लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड प्रोसीजर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इन सारी चीज़ों को कंप्लाइंस इन्फॉर्मेशन को मेंशन करने के बाद, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंगली ये सारे इन्फॉर्मेशन को मेंशन करने के बाद, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेगा वो क्या करेगा, इशू करेगा एक सर्टिफिकेट. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ टू इशू अ सर्टिफिकेट एंड दैट सर्टिफिकेट with mention and signed by the director's report and sent to the all shareholders, and that certificate the company has to enclose that certificate to the director reports. तो डायरेक्टर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जाएगा एंड सेंट टू द ऑल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. जो भी सारे शेयर होल्डर है, टू ऑल शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो सब और शेयर होल्डर को ये सर्टिफिकेट जाएगा कि दैट वी हैव मेकिंग एन ऑडिट रिपोर्ट, वी हैव मेकिंग एन कंप्लाइंस रिपोर्ट एंड ऑल द डिटेल्स हैव बीन मेंशन. तो ये सर्टिफिकेट इशू करने के बाद द कंपनी ऑल्सो सेंड द सर्टिफिकेट, और जो ये कंपनी जो ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू करेगा तो दैट सर्टिफिकेट इज सेंडेड टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ India. Stock exchange, that certificate is sent to the stock exchange in a form of compliance report. So in a form of compliance, तो ये stock exchange को together the annual return filing, जो annual return filing उनकी रहेगी कंपनी की compliance report और ऑल्सो जो सर्टिफिकेट रहेगा, ये जो सर्टिफिकेट रहेगा ऑडिटर जो वेरीफाई कंप्लाइंस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के बाद बनाएगा, तो ये सर्टिफिकेट भी दे हैव टू सेंड इट टू द स्टॉक एक्सचेंज टुगेदर और एनुअल रिपोर्ट के साथ. एनुअल रिटर्न्स जो होंगे कंपनी के, उस रिटर्न्स के साथ दे हैव टू मेंशन टू द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा अंडर अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन को वेरीफाई करा है, सो दे हैव टू analyzing that, and that report they have to send it to all the shareholders of a company. Okay, so in this lecture we have to discuss the verification of compliance of corporate governance. First, whether they implemented and whether this report had been stated towards and how they are working. So auditor have whether they making and compliance, analyzing the report. So auditor first calculate all the details or verify that all the details have required information have been mentioned in a report or not. Okay, so they have to verify the board of directors information, how many board of directors will require, audit committee, how many members in required, whether they form an audit committee, and remuneration, which percentage, which rate of interest amount remuneration is required on which period. They have to mention the remuneration of directors. Fourth, board procedure. Fifth, management. And six, shareholder information, that shareholder should inform, and they have to information about all kinds of appointment and reappointment of directors, and report on corporate governance, that they have required a separate section of making, and certificate by director. After verifying all the provisions and all the contents mentioned in a report on corporate compliance report, so auditor have to certify all the reports and send it to the stock exchange, which have been according to the rules and regulation which have been regulated by the corporate
governance. So they have to follow, auditor have to follow all the rules and regulation provisions, and they have to certify a particular report, compliance report, and then that report they have to send it to the stock exchange also within the annual returns of the company. So in this session we have discussed only that aspect. In another section we will discuss about the area of work of an audit committee. Okay, so now we have to finish our lecture. In next lecture we have continue this chapter.